Hello everyone, I am Julian Khan and today I'll be discussing the topic communication with you. As we all know how important communication is today in today's world. It can be the difference between you striking a deal and not striking a deal. It can be the difference between you getting a job and not getting a job. It makes all the difference today because everything that we do is based on communication. If your communication is right, the other person will understand you better and you will realize that your job will be done easily. But if your communication is not right, the other person is not going to understand you, and that will create problems for you. So today we are going to discuss about communication and the types of communications. So basically communication is of two types: verbal communication and non-verbal communication. So what is verbal communication? Basically when we talk to somebody directly, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ directly या phone पे या Teams पे या Zoom पे जैसे अभी हम कर रहे हैं, these are all forms of verbal communication. And when we talk about non-verbal communication, these are communications wherein हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, ये आगे वाले को बता रहे हैं हम कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं. So these are the basic two types of communications, verbal and non-verbal. And then at the bottom we have two enablers. Now what are enablers? Enablers are basically वो चीजें जो आपकी communication को ज़्यादा effective बनाती हैं. So these are listening and empathy. So if you have good listening skills and you are empathetic towards others, then you realize that you're able to understand them better or help them better. So these are the four things: verbal communication, non-verbal communication, two types, and the two enablers, listening and empathy. So now let's get down to each one of them individually and see what is it that we're going to discuss today. So first we talk about verbal communication. So verbal communication basically, as I said, means speaking with others, be it face to face or over the telephone, via Teams or Zoom, etc. जैसे मैंने पहले बताया, किसी से directly बात करने को हम verbal communication कहते हैं. Some are informal, such as chatting with your friends over coffee, while others are more formal, such as company meetings. तो इसमें कुछ formal होती हैं और कुछ informal होती हैं. आप अपने दोस्त यारों से मिल रहे हैं तो वो informal हो जाती हैं. आप ऑफिस सेटअप में बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं तो वो formal हो जाती हैं. लेकिन मैटर नहीं करता formal है या informal है. ये मैटर नहीं करता आप क्या बोल रहे हैं. What matters most is how do you say it. So irrespective of the type, it is not about the words, it is all about how you say them. So basically आप कैसे बोल रहे हैं अपनी बात को, उससे सारा फर्क पड़ता है कि आगे वाला आपको कैसे समझेगा. और आप कैसे बोल रहे हैं, इसमें चार चीजें मेन आती हैं, which are pitch, tone, content and modulation. अब इनको एक एक करके हम देखते हैं. First, pitch. What is pitch? Pitch is basically your volume going up and down. So normally what happens when you're angry, normally your pitch will go higher. You'll be louder. क्या हुआ? क्यों ऐसे बोल रहे हो? So what happens? Your volume goes higher. And when your volume goes higher, it's a clear indication to the other person that you are getting angry or you're upset. So we need to be careful when we're talking to people that our pitch does not go up. Second is tone. Tone can show sarcasm. For example, अच्छा, really? सही में? So this is a tone wherein you're telling the person that you're getting sarcastic. You don't believe what the other person is saying. So very important that we watch our tone when we are talking to people. Then comes the content. Very important. Content क्या होता है? आपके choice of words. आपने क्या words अपने बातचीत में इस्तेमाल किए हैं, they will make all the difference. So if the words are right, the message will be right. If your words are not right, आपके intentions भले सही हो, but message सही आगे नहीं जाएगा. And then fourth but not the least is modulation. Now modulation is very important and I'll give you a small example here. मैं एक line use करूंगा, वो जा रहा है. So if I ask you what does वो जा रहा है mean, it means he is going, as simple as that. But अगर मैं इन्हीं चार words को modulate करके बोलूं तो इसका meaning change हो जाता है. So for example, वो जा रहा है. Now it does not mean he is going. Now it means it's a question. Is he going? क्या वो जा रहा है? तो लाइन बिल्कुल सेम रही, वर्ड्स बिल्कुल सेम रहे, कंटेंट आपका बिल्कुल सेम रहा, लेकिन मॉड्यूलेशन बदली और जैसी मॉड्यूलेशन बदली क्या हुआ, उसका मीनिंग चेंज हो गया. इसको एक और बार ट्राई करते हैं. वो जा रहा है. नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस गॉसिप. वो जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब जा रहा है, कहां जा रहा है, कब वापस आएगा, मेरे लिए क्या लाएगा, 10 सवाल. So whenever you're talking to somebody, when you're communicating with somebody, it is very important that you remember these four things: pitch, tone, content and modulation. अगर आप इन चार चीजों पर ध्यान देंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होगी.
और आप जो चाहते हैं बोलना वही आगे वाला समझेगा. So this is verbal communication for you. 4 important things in it: pitch, tone, content, and modulation. So moving on from verbal communication to the next type, which is your non-verbal communication. Well, now in non-verbal communication, if you see, non-verbal communication, body language, facial expressions, eye contact, and hand movements. ये 4 चीजें हैं जो आपकी non-verbal communication में important होती हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, what is non-verbal communication? When you're not saying anything, but your body language, your facial expression, your eye contact, and your hand gestures are saying something which the other person can understand without you even saying a word. So as it says here, the human face is extremely expressive, able to convey countless emotions without saying a word. बिना एक लफ्ज कहे आप बहुत कुछ कह सकते हैं. आगे वाला अगर समझदार है, समझ सकता है, तो आपको देखते एकदम भांप लेगा कि आप क्या फील कर रहे हैं. कई बार आपके मम्मी डैडी जब आप पे नाराज होते हैं तो हम नहीं भांप जाते एकदम से, बिना बोले भी हम भांप जाते हैं कि वो नाराज हो गए या डैडी को गुस्सा आ रहा है. क्यों? बिकॉज हम उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके बॉडी जेस्चर्स को गेज कर रहे हैं और उससे हमें समझ आ रहा है कि वो नाराज हो रहे हैं. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. आपको लगेगा ऐसा कि नॉन वर्बल में कम्युनिकेशन कहां से आ गया, बट नहीं, ये बहुत कुछ बताता है आगे वाले को आपके बारे में, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं. तो इसके लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, ये इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट और हो जाता है बिकॉज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी आइदर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल. सो व्हेन आई से दैट, व्हाट आई मीन इज कि या तो हो सकता है आप जानबूझ के कोई फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, या हो सकता है कि आपको एहसास भी नहीं हो रहा है लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है कुछ और ही बात बोल रहे हैं. आप सोच कुछ रहे हैं लेकिन आपका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और दिखा रहे हैं, जिससे अगले वाला आदमी, सामने वाला जो इंसान है, वो कंफ्यूज हो रहा है या वो सही से समझ पा रहा है कि आप बोल कुछ और रहे हैं लेकिन आप अंदर फील कुछ और कर रहे हैं. तो लेट्स गो वन बाय वन. सो बॉडी लैंग्वेज. तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज बेसिकली आपकी पूरी बॉडी जो है ये बात करती है आगे वाले से. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपने आगे की तरफ लीन किया हुआ है उसके, और आपने हाथ ओपन रखे हैं अपने, बेसिकली हाथ ओपन से मेरा मतलब है कि आप ऐसे ऐसे करके नहीं बैठे, ऐसे करके नहीं बैठे, तो तब आप रियलाइज करेंगे कि आपका इंटरेस्ट, आगे वाले को लगेगा कि आपका उसमें इंटरेस्ट है, उसकी बातचीत में आपका इंटरेस्ट है. बट इमेजिन यू आर टॉकिंग टू समबडी, यू आर लीन बैकवर्ड्स, योर हैंड्स आर क्लोज्ड, then what the other person gets feeling is that you're not interested in the conversation. Same way facial expressions. Facial expressions 1000 चीजें आपके फेस कर देता है. आपके दांत नीचना, आपकी भौहें ऊपर उठाना, all these things will indicate that you're either getting frustrated or you're getting angry or you're not open to the feedback the other person is giving. So be very careful about your facial expressions. Keep a calm, smiling face when you're talking to people so that people understand that you are interested in their conversation. Then comes the eye contact. Well, very important. Imagine अगर आज मैं आपके साथ ये सेशन कर रहा हूं और मैं साइड में देख के बात, पूरा सेशन में आधा घंटा उस तरफ देख के बात करूं, तो आपको कैसा लगेगा? You will not like it because everybody likes when you're talking to somebody the other person is looking at you, because that is a sign that he is engrossed in your conversation. That means वो आपके साथ उस बातचीत में equally involved. लेकिन अगर मैं इधर उधर देखना शुरू कर दूं, so it is bad manners. First of all, it's very rude. At the same time, सामने वाला एकदम समझ जाएगा कि आप उसी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है. And last but not the least is your hand gestures. Very important. Never point at people. It's not a very good thing to do. Never show a thumb to somebody. You know, it can be good, it can be bad also at times. Okay. So whenever you're talking to people, you have to guide somebody to some place. Always use open palm gestures. So if you have to show somebody your hand, so you have to show your hand, open hand like this. Okay. Never point. Never ever point at anybody. That's not a right thing to do. So these are the 4 important things. The way you look at someone can communicate many things, including interest, affection, hostility और attraction. जैसा आप किसी की तरफ देखते हैं, इससे बहुत कुछ बयां हो जाता है. सामने वाला अगर समझदार है तो एकदम समझ जाएगा. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 मेन पार्ट है इसके: बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट और हैंड जेस्चर्स. अब आप सोच रहे होंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, बट मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है. अब अगर आप इस पाई चार्ट को देखें, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को, तो सिर्फ 7% कम्युनिकेशन में वर्ड्स काम आते हैं. सिर्फ कितने? 7%. ओनली 7%. 38% इज योर वॉइस, टोन एंड मॉड्यूलेशन, जो हमने बात करी थी, पिच, टोन, मॉड्यूलेशन, कंटेंट. 38% कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी कि नहीं, ये डिसाइड करता है. एंड देन यू कम टू द ब्लू पाई, 55%. Imagine 55% is your
non-verbal communication, which is your body movements, face, arms, eyes, all these things, they contribute 55% of chunk in your communication. That means आप जब किसी से बातचीत कर रहे हैं कितनी इफेक्टिव होगी ये डिसाइड कर रहा है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 55%. 7% plus 38 is 45%. So in total 45% verbal communication का पार्ट होता है और 55% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है. So इससे आपको एहसास होगा कि how important your non-verbal communication is, how important it is that you maintain a decorum, you maintain a calm facial expression, your body language should not be aggressive, okay, your hand movements should be normal, your eyes should always be in contact with the other person. It's very important. Non-verbal communication is very, very important. So this covers our two types of conversation, which was your verbal communication and your non-verbal communication. Now moving on to your enablers. We had two enablers. The first one is listening. Now may not sound, but it is an integral part of effective communication. आपको ऐसा लगेगा listening कैसे communication होती है? Communication तो बोलना होता है, सुनना थोड़ा ना होता है. लेकिन नहीं, communication में सुनना बहुत जरूरी है. And why is it important? We'll see. If you cannot listen, you cannot engage. If you cannot engage, you cannot understand. अगर आप किसी को सही से नहीं सुनेंगे, तो आप कभी भी उस conversation के साथ engage नहीं हो पाएंगे. और अगर आप engage नहीं हो पाएंगे, तो आप उससे कभी समझ नहीं पाएंगे. And then what happens if you don't understand? Without listening, it's impossible to assess the needs of others, which makes it difficult to achieve a win-win outcome. So अगर आप उसको सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो क्या होगा? Outcome क्या होगा? वो जिस वजह से वो आपसे बातचीत कर रहा है, वो प्रॉब्लम आप उसकी कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको प्रॉब्लम समझ ही नहीं है. और अगर आप समझ नहीं आई और सॉल्व नहीं कर पाए, तो एक ये विन-विन सिचुएशन नहीं होगा, ना आपके लिए ना उस इंसान के लिए जो आपसे बात कर रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर. याद है बचपन में कई बार मम्मी डैडी बोलते थे, टीचर्स बोलते थे कि ऊपर वाले ने एक मुंह दिया और दो कान दिए. क्यों? ताकि आप ज्यादा सुने और कम बोलें. So it's very important to be a good listener, because unless you listen to people well, you will realize that you're not understanding them, and if you're not understanding them, you're of no help to them. So please be a good listener. Now here I would like to ask you, or rather share with you, what is the difference between listening and hearing? ये दोनों words आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, listening and hearing, but इन दोनों में फर्क क्या होता है? So what is hearing? First example. Now let's say right now हम इस सेशन में हैं, आप ये सेशन देख रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, और आई एम अज्यूमिंग कि आप ध्यान से मुझे सुन भी रहे हैं, और पीछे से आपकी फैमिली की आवाज आ रही है. हो सकता है घर में मम्मी डैडी हो, बच्चे हो, वाइफ हो, भाई बहन हो, वो पीछे से शोर कर रहे हैं या जो आपस में बातचीत कर रहे हैं. लेकिन अगर ये लाइव क्लास होती है, मैं आपसे एकदम पूछ लेता आपके पीछे पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं, तो आप शायद जवाब नहीं दे पाते, बिकॉज आपका ध्यान मेरी बातों में. लेकिन आपको सुनाई दे रहा है वो पीछे क्या कह रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है कि वो बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं ये नहीं समझ आ रहा है. तो दैट इज हियरिंग. दैट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ हियरिंग. एक और एग्जांपल देता हूं. आप सबने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, कुछ ने शायद प्लेन में भी ट्रैवल किया हो. सो कई बार प्लेन और प्लेटफॉर्म पे या एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट्स होती हैं आपकी ट्रेन के बारे में, आपके प्लेन के बारे में. सो फर्स्ट करिए, अगर आज आप, हमारा एक इंडियन कैरियर है स्पाइस जेट, आप उससे ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और अनाउंसमेंट होती है, कृपया ध्यान दीजिए वो सभी यात्री जो स्पाइस जेट की उड़ान से, और आप स्पाइस जेट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके कान एकदम खुल जाएंगे. अब आप हियर नहीं कर रहे हैं, आप लिसन कर रहे हैं. क्यों लिसन कर रहे हैं? बिकॉज आप जानना चाहते हैं कि आपकी फ्लाइट के बारे में कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है, कोई डिले तो नहीं है, कोई गेट तो चेंज नहीं हो गया, या ट्रेन लेट तो नहीं चल रही, कोई प्लेटफॉर्म तो चेंज नहीं हो गया. लेकिन फर्स्ट करिए यही अनाउंसमेंट होती, कृपया ध्यान दीजिए वो सभी यात्री जो एयर इंडिया की उड़ान से, एयर इंडिया सुनते ही आप लिसन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हियर कर रहे हैं. अब अगर मैं आपसे 2 मिनट बाद पूछता कि भाई साहब वो अनाउंसमेंट में क्या बोला गया था, आप बोलते हैं सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने अनाउंसमेंट सुना कि कोई कुछ बोल रहा था पीछे. So that is the difference between hearing and listening. Listening is when you listen to understand. It's very important. Listen to understand. And once you can understand, you'll be able to help the other person better. So very important, listening. Paramount in a good communication is listening. सिर्फ बोलना ही नहीं है, आगे वाले को सुनना भी है, तभी effective communication होगा. And moving on from listening to the other part, which is empathy. Now, what is empathy? Empathy is putting yourself in the other person's shoe. It's very important to understand this. Putting yourself in the other person's shoe. It's ability to identify the emotions and then react accordingly. अगर आप में empathy है, आप अपने आप को अगले बंदे के पोजीशन में डाल के सोच सकते हैं, तब आप देखेंगे आप उसके इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली बिहेवियर अपना रखेंगे. इट अलाउज यू टू रिलेट टू अदर्स, जिससे कि सामने वाला जो है आपको अप्रिशिएट करता है और वो उसको ये लगता है कि हाँ आप उसको सही से समझ रहे हैं.
or it helps not only knowing when one is feeling bad, but one when is feeling positive, when one is in a positive frame of mind, which allows one to open up and share critical information at the right time. So अगर आप empathetic हैं तो इसमें आपको दो फायदे होंगे. पहला तो ये कि आपको पता चलेगा कि वो इंसान कब अच्छे मूड में है, जब आप उससे एक्चुअली बात कर सकते हैं. कुछ बातें ऐसी जो आप बोलना चाह रहे थे, वेट कर रहे थे कि वो सही मूड में और तब बोलें, और कुछ बातें ऐसी जो वो बताना चाह रहा था लेकिन क्योंकि वो सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं था, नहीं बता रहा था, लेकिन अब है तो बता दो. सो ये दो फायदे आपको होते हैं अगर आप एम्पैथेटिक लिसनर हैं. फॉर इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं. फॉर एग्जांपल, जब भी आपको कहते हैं ना छुट्टी चाहिए, तो यार बॉस का मूड कैसा है, तो बॉस के मूड से छुट्टी का क्या रिलेशनशिप. I've got my leave, I've got 10 sick leaves. If I want to take my leave, that's my right. But हम फिर भी कहते हैं यार बॉस का मूड कैसा है. Why? Because उसके मूड पर डिपेंड करता है कि मेरी छुट्टी सैंक्शन होगी या नहीं होगी. So it's very important to understand how the other person is feeling. So empathy is very important. Putting yourself in the other person's shoe. अपने आप को दूसरे इंसान की जगह पे रख के देखना और फिर ये देखना कि मुझे अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या करता. और इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अब आपने बचपन से वर्ड सुनेंगे एम्पैथी और सिंपैथी. अब इन दोनों में फर्क क्या होता है. सिंपैथी नहीं करनी है, एम्पैथी दिखानी है. सिंपैथी क्या होती है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फर्स्ट करके आप रोड पे जा रहे हैं, आप एक एक्सीडेंट देखते हैं. अब एक्सीडेंट में आपने क्या देखा, आपने देखा कोई नीचे गिर गया है मोटरसाइकिल से, उसको खून निकल रहा है. तो आप अपने मन में क्या कहते हैं, अरे 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 बेचारा, चोट लग गई इसको, पता नहीं बचेगा कि नहीं, अरे बेचारा, इससे घर वाले कहाँ होंगे. ये है सिंपैथी. आपको दुख हो रहा है उसकी, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे. लेकिन अब सोचिए, आप आए, आपने एक्सीडेंट देखा, आप अपनी गाड़ी से उतरे, आप एक्सीडेंट के पास पहुंचे, एरिया में पहुंचे, आपने उस इंसान को उठाया, अपनी गाड़ी में रखा या टैक्सी में बिठाया, उसे हॉस्पिटल ले गए, पुलिस को बुलाया. ये है एम्पैथी. बिकॉज आपने अपने आप को उसकी जगह रख के देखा कि अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ होता तो मैं क्या चाहता. मैं चाहता कि कोई मुझे हॉस्पिटल जल्द से जल्द ले जाए. तो ये फर्क है सिंपैथी और एम्पैथी में. तो अगर आप एम्पैथेटिक लिसनर हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ बहुत अच्छे बनेंगे और लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स बनेंगे. लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे. लोग ये समझेंगे कि ये मेरी बातों को समझता है. और एक बार ये रिलेशनशिप बन जाए तो ये लाइफ टाइम के लिए होता है. एंड इट हेल्प्स यू अ लॉन्ग वे in your career, in your business, where you're working. It does not matter where you are, but it will help you to build bridges with people. And end of the day, remember, building bridges takes you far. As simple as that. अगर आपके रिलेशनशिप्स लोगों से अच्छे हैं तो वो बहुत आगे जाएंगे लाइफ में. अगर रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं तो शायद आप इतना आगे ना जा पाए. आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे नर्स बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे क्लिनिकल एनालिसिस बन सकते हैं, लेकिन अगर आपका बातचीत करने का तरीका ठीक नहीं है तो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे. सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे अप्रिशिएट नहीं करेंगे. बहुत डॉक्टर्स हैं और बहुत नर्सेस और बहुत और किस्म के प्रोफेशनल्स बैठे हैं मार्केट में. तो ये याद रखिएगा कि एम्पैथेटिक लिसनर होना बहुत जरूरी है. अगर आप एम्पैथेटिक लिसनर हैं, then you will realize that you will build relationships for life and people will appreciate you. So moving on from here, 4 things we have done now: your verbal communication, non-verbal communication, listening, and empathy. And this brings us to the last slide of the module, which is 5 C's of communication. Now, what are 5 C's of communication? Clear, concise, correct, complete, and courteous. So let's take them one by one. What is clear? Clear मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं वो एकदम क्लियरली आगे वाले को समझ आ रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप क्लियर नहीं है आप क्या बोल रहे हैं तो आगे वाला कभी समझ ही नहीं पाएगा आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये कॉन्वर्सेशन शुरू क्यों हुई. तो क्लियर होना बहुत जरूरी है. कंसाइज, कंसाइज मतलब क्या होता है? टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशन को टू द पॉइंट रखेंगे तो आप गलत वर्ड्स कम इस्तेमाल करेंगे, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, और टू द पॉइंट रहता है, आगे वाला इंटरेस्ट लूज नहीं करता. देन आता है करेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है. आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं. फर्स्ट आपको रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं तो फिर वो रिपोर्ट जो होती है वो बिल्कुल जस्टिफाइड होनी चाहिए, बिल्कुल चेक्ड होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए और तभी आगे देनी चाहिए. इनकरेक्ट रिपोर्ट आप नहीं दे सकता है किसी को, या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आगे नहीं दे सकता. फिर आता है कंप्लीट. वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आप इंफॉर्मेशन आगे दे रहे हैं वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. पढ़ने वाले को ऐसा ना लगे या सुनने वाले को ऐसा ना लगे कि वो और इंफॉर्मेशन चाह रहा था लेकिन आपने दी नहीं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्लिनिक कितने बजे खुलती है, लंच कितने बजे होता है और बंद कितने बजे होती है, और आपने मुझे जवाब दिया सर हमारी क्लिनिक सुबह खुलती है 9 बजे और शाम को बंद होती है 6 बजे. लेकिन आपने लंच का जवाब नहीं दिया.
तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगा, ये इनकम्प्लीट आंसर है, और ये मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा। मैं दो बातें सोचूंगा, या तो मैं सोचूंगा आप ध्यान नहीं दे रहे थे मेरी बात पे, या मुझे लगेगा कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं, तो हो सकता है मैं अपना बिजनेस कहीं और लेकर जाऊं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन आगे वाले को दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, courteous, which is the most important, I would say, किसी से फ्रेंडली और पोलाइट होना बहुत जरूरी है अपनी कॉन्वर्सेशन। एक बहुत पुराना मुहावरा है, मेरी मदर हमेशा बोलती थी कि बनिया गुड़ ना दे, गुड़ जैसी बात तो करे। So it's very important that you're polite and friendly to people. आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप अच्छी खबर दे रहे हैं, बुरी खबर दे रहे हैं, सही रिपोर्ट है, गलत रिपोर्ट है, मैं नहीं जानता, लेकिन आप बात कैसे कर रहे हैं वो पोलाइट और फ्रेंडली मैनर में होनी चाहिए। और अगर आप पोलाइट एंड फ्रेंडली हैं तो आप, अगेन जैसे मैंने बताया था, एम्पैथेटिक लिसनर के जब आप होते हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं। वैसे ही अगर आप पोलाइट एंड फ्रेंडली हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लोगों के साथ बना पाएंगे। अब ये रिलेशनशिप चाहे आपकी फैमिली के अंदर हो, आपकी बाहर दोस्तों के साथ हो, या प्रोफेशनली हो, हर जगह ये आपको काम आएगा। So remember, be courteous, be friendly and polite to people. So this was communication for you in a nutshell. I'll just go through it once again. Two aspects, two main types of communication. First is your, what is the first one? The first one is your verbal communication. And the second one is what? Your non-verbal communication. Verbal communication had four aspects, which was your modulation, content, pitch, and tone. Then we had the non-verbal communication, which had again four things: your body language, your eye contact, your facial expressions, and your hand gestures. Then we had the two enablers, that was your listening, very important to listen well, and then empathy, be an empathetic listener so that people appreciate you. And then we have, of course, the 5 C's of communication: clear, concise, correct, complete, and courteous. Courteous being the most important, be polite and friendly. So if you can manage all this in your communication, in your day-to-day communication, you will realize that you're being more and more effective, you're being understood well, you are understanding people well, and the end result will always be good for you. So signing out here from Apar Health, this is Julian Khan, wishing you all the very best. God bless. Bye-bye.